قومی وقار کا نشان پاکستان کا ترانہ افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دیں۔ پشاور میں تقریب کے دوران قومی ترانے کے وقت ڈھٹائی سے بیٹھے رہے۔ تقریب میں موجود وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور صوبائی وزراء کی مجرمانہ خاموشی، عوام کی طرف سے افغان کونسل جنرل کی ملک بدری کا مطالبہ۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی پشاور میں وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی میزبانی میں تقریب کے دوران سفارتی آداب کی خلاف ورزی پر افغان قونصل جنرل محب اللہ شاکر کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ خیبر پختونخوا میں ہر شعبہ بدحالی کا شکار، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے صوبے میں گورننس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بدعنوانی اور بے ضابطگیوں سے متعلق ہوش ربا حقائق کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ 2800 ارب روپے سے زائد کی کرپشن اور بے ضابطگیوں کی نشاندہی، ٹیکسوں، خریداریوں سمیت دیگر شعبوں میں بھی اربوں روپے کی بد انتظامی اور بے ضابطگیاں۔ روس کے نائب وزیر اعظم آج سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اعلیٰ سطح وفد بھی روسی نائب وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ وفد صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقاتیں کرے گا۔ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ قرائے ارض کو صاف رکھنا ہماری بقا کے لیے ناگزیر۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار دیہی علاقوں کی صفائی کے ساتھ کچرے کی ری سائیکلنگ، شجرکاری، پبلک مقامات کی صفائی۔ پنجاب حکومت صفائی ستھرائی کی ذمہ داری کے لیے پرعزم۔ کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کے مناسب طریقے اپنائیں، پلاسٹک کا استعمال نہ کریں۔ انٹرنیشنل کلین اپ ڈے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پیغام۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ، بیرسٹر گوہر نے دستاویزات جمع کرانے کے لیے 3 ہفتوں کی مہلت مانگ لی۔ آپ نے 5 سال بعد انٹرا پارٹی انتخاب کروائے، نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ممبر الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ کا بیرسٹر گوہر سے مکالمہ، سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے وائٹ آئل پائپ لائن پروجیکٹ میں پیش رفت۔ 477 کلومیٹر طویل وائٹ آئل پائپ لائن پروجیکٹ کے لیے فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ پائپ لائن موٹر وے کے متوازی، ماچکی سے تھالیاں، تھالے سے تاروجبہ کے درمیان 2 حصوں پر مشتمل منصوبے کی تعمیر سے تیل کی کم لاگت اور ہموار سپلائی یقینی بنائی جا سکے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 648 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ، انڈیکس 80,000 کی حد عبور کر گیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی زیر صدارت کونسل جنرلز کانفرنس کا انعقاد۔ پاک امریکہ تجارت میں اضافے کے لیے حکمت عملی پر غور۔ اوورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ، شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ کونسل جنرلز اور ٹریڈ افسران تجارتی امکانات پر خصوصی توجہ دیں۔ رضوان سعید شیخ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل پر اسرائیل کی جاری بربریت کو رکوانے اور فلسطینی کاز کی حمایت کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور۔ پاکستان کی فلسطینی ریاست کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کی حمایت۔ سفیر منیر اکرم کا فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے اور 2 ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی کانفرنس بلانے پر زور۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری، صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 26 افراد شہید، 84 زخمی۔ البریج پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے 7 افراد شہید، رفح میں ایک دھماکے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ حزب اللہ نے پیجرز دھماکوں کو اسرائیلی جارحیت قرار دے دیا۔ ان دھماکوں کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیل کو اس حرکت کی سزا ضرور ملے گی، حزب اللہ کا اعلان۔ منگل کو لیبنان میں حزب اللہ کے زیر استعمال پیجرز بیک وقت پھٹ گئے تھے۔ دھماکوں میں کم از کم 9 افراد جاں بحق اور ایرانی سفیر سمیت 2700 سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے۔
शिमाली कोरिया का एक हफ्ते में बैलिस्टिक मिसाइलों का दूसरा तजुर्बा। मिसाइल 400 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत का हामिल। प्योंगयांग के जारहाना इकदाम से जजीरा नुमा कोरिया का अमन शदीद खतरा से दो चार है। जनूबी कोरिया की मजम्मत। 18 सितंबर 1965 जंग का 18वां दिन। दुश्मन के तबाहशुदा टैंकों की तादाद 453 तक पहुंच गई। 106 जंगी तैयारे भी मलबे का ढेर बन चुके थे। खेमकरन में दुश्मन के 4 हमले नाकाम। फाजिलका, राजस्थान और अखनूर के मकामात पर पाक फौज की फतूहात। पाक फजाए का अंबाला बेस पर हमला। 4 कैनबरा बमबार तैयारों और तनसीबात को राख का ढेर बना दिया। मोदी के भारत में कोई भी महफूज नहीं। मणिपुर की खवातीन की अनसुनी दास्तान। मसलूम खवातीन 1 साल से अपने बिछड़ों के लिए इंसाफ की मुंतज़िर। हजारों माएँ, बहनें, बेवाएं और बेटियां इंसाफ की मतलाशी, लेकिन मोदी का इंसाफ खामोश। मोदी अब भी आलमी सतह पर झूठी और खोखली भारतीय जमहूरियत का दिफा कर रहा है। बीजेपी के गुंडों का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर हमला। मध्य प्रदेश में जुनूनी हिंदुओं का मुसलमानों पर डंडों से तशद्दुद और पथराव। इलाका मकीनों का शदीद गम और गुस्से का इजहार। 5 रोज कबल भी हिंदू दहशतगर्दों ने मुस्लिम आबादी पर हमला करके मस्जिद शहीद कर दी थी। बजरंग दल और बीजेपी के गुंडों ने मुस्लिम आबादी में मोटरसाइकिलों और इमलाक को भी आग लगाई। अमेरिका में सिख रहनुमा गणपतवंत सिंह पन्नू की कत्ल की साजिश के मुलजिम निखिल गुप्ता पर फर्द जुर्म आयद। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल, रॉ के एजेंट समन गोयल, विक्रम यादव और निखिल गुप्ता के नाम भी साजिश करने वालों में शामिल। भारत सिखों के हक खुद इरादियत, मजहबी अकलियतों पर जुल्म और इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले गणपतवंत सिंह पन्नू की आवाज को खामोश कराना चाहता था। चैंपियंस वनडे कप छठे मैच में मारखोर की डॉल्फिन्स के खिलाफ बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। पॉइंट्स टेबल पर मारखोर अपने दोनों मैचेस जीतकर 26 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर मौजूद। डॉल्फिन्स की टीम का बगैर किसी कामयाबी के आखिरी नंबर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स की टीमों के दरमियान T20 सीरीज 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा T20 आज शाम 7 बजे से मुल्तान में खेला जाएगा। सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका की खवातीन ने 10 रन से कामयाबी समेटी थी। तीसरा और आखिरी T20 20 सितंबर को खेला जाएगा। मंगोलिया स्नूकर वर्ल्ड कप पाकिस्तानी क्विस्ट अशरद इकबाल ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बेस्ट ऑफ 7 क्वार्टर फाइनल में अशरद इकबाल ने चीन के गाओ यांग को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। पाकिस्तान के अवैस मुनीर का टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सफर तमाम। और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन चैंपियंस लीग एलीट के लीग फेज का आगाज। सऊदी क्लब अल हिलाल ने कतरी क्लब अल रयान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। अल अहली ने ईरानी क्लब पर सपोलेस को 1 गोल से हराया। अल नसर का इराकी क्लब अशुर्ता के साथ मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। बरतानिया में बर्क रफ्तार गोल्फ मुकाबलों का इन्नकाद। स्पीड गोल्फ चैंपियनशिप में गोल्फर्स की तेजी से शॉट्स लगाते हुए होल करने की कोशिश। प्रोफेशनल, इमेच्योर खवातीन और जूनियर 56 गोल्फर्स की शिरकत। इमेच्योर गोल्फरोल मेजर ने मजमूई स्कोर के साथ तेज रफ्तार 36 होल्स मुकम्मल करके फतह समेटी। 18 होल में आयरलैंड के रॉब हुगिन 23 मिनट 21 सेकंड्स के साथ कामयाब रहे। और बल्गारिया के बाप बेटे का सालगिरह मनाने का अनोखा अंदाज। स्टीफन इवानोव और उनके बेटे मैक्सिम ने बहरे मुंजमद शुमाली में समंदर में जन्मदिन मनाया। बाप बेटा 33 दिन की कश्ती रानी के बाद समंदर के जनूबी हिस्से से शिमाली हिस्से पहुंचे। मकसद खतरे से 2-4 समुद्री अनवा के तहफ़्फ़ुज़ की अपील करना था। दोनों बहरे मुंजमद को कश्ती के जरिए अबूर करने वाले पहले अफराद का रिकॉर्ड बनाने के लिए भी पुरुम्मीद।
अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रसा और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। अफगान काउंसलेट के ओहदेदारों ने बद तहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी की है। अफगान काउंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अफगान सिफारतकार प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर बड़ी ढटाई और बेशर्मी से अपनी नशस्त पर बैठा रहा। माहिरीन ने कहा है कि इस शख्स को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। अफगान कौंसल जनरल को दावत देने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी सवाल उठता है कि क्या उन्हें पाकिस्तान की इज्जत और सिफारती आदाब का कोई ख्याल नहीं है। जराए ने तस्दीक की है कि कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेजात मुकम्मल नहीं हैं। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास न अफगानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरी दस्तावेज। मुहिबुल्लाह शाकिर और खानदान 2015 में UNHCR से POR कार्ड पर डॉलर और राशन लेकर अफगानिस्तान वापस जा चुके थे। जराए के मुताबिक मुहिबुल्लाह शाकिर और खानदान के POR कार्ड 1 सितंबर से एक्सपायर हो चुके हैं और उनके खानदान समेत तमाम अफगान मुहाजिरीन गैर कानूनी क़याम पजीर हैं। तमाम गैर कानूनी क़याम पजीर अफगान मुहाजिरीन को वजारत दाखिला की जानिब से मजीद तौसी नहीं दी गई। पेशावर में अफगान कौंसल खाने में अहदेदारों की जानिब से बद तहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है। सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी पर अफगान नाज़िम मुल्क को दफ्तर खारजा तलब किया गया। तराने की बे एहतरामी पर अफगान सिफारतकार को एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का भांडा फोड़ दिया। 2023-24 की रिपोर्ट में सूबे में बदउनवानी और बेजाब्तगियों से मुतालिक होशरुबा हकाइक सामने आए हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में 2800 अरब से ज़ायद की करप्शन और बेजाब्तगी निशानदही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाजमतों और इंसानी वसाइल के शोबे में 1885 अरब रुपए की बेजाब्तगियां हुई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुतालिक उमूर में 474 अरब रुपए से जायद की बदउनवानी रिपोर्ट की गई है। रिपोर्ट में टैक्सों और खरीदारियों समेत दीगर शोबों में भी अरबों रुपए की बद इंतजामी और बेजाब्तगियों का इंकशाफ किया गया है। अरबों रुपए की इन पे करप्शन का इल्जाम है और ये पैरज हैं और ये मुख्तलिफ वजारतों और मुख्तलिफ महकमों में हैं। कुछ वज़ीर आला और जो हुकूमत है वो फौरी तौर पे मुस्तफी हो जाए, क्योंकि जो वो दावे कर रहे थे, जो उनके बड़े बड़े क्लेम्स थे, उनकी असलियत सबके सामने आ गई है। इन्होंने जितनी करप्शन की है तारीख में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। यहाँ पर इनका वो ये है कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं, इनके जो वज़रा है, इनके जो अरकान असेंबली है, इनके जो चीफ मिनिस्टर है, जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनकी मेरे ख्याल में अगर आप करप्शन का वो अंदाजा लगे तो उसको अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आप देखिए कि BRT जो इन्होंने बनाया हुआ है उसमें कितनी करप्शन हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि अपने ही एक प्रोजेक्ट से इन्होंने स्टे लिया हुआ है अभी तक। रूस के नायब वज़ीर आज़म लेक्सी ओवरचुक सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह वफ़द भी रूसी नायब वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वो अपने 2 रोज़ा दौरे में सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। रूस के वक्त का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। इंटरनेशनल क्लीन अप डे के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि कुर्राए अर्ज़ को साफ़ सुथरा रखना हमारे माहौल की हिफाजत और बका के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि माहौल को साफ़ सुथरा रखना मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने अवाम से अपील की कि कूड़ा ठिकाने लगाने के मुनासिब तरीके से अपनाइए और प्लास्टिक का इस्तेमाल हरगिज़ न करें। उन्होंने कहा कि अपने शहरों, देहात और गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखें और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अमन अमान के बेहतरीन इंतजामात पर इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और महाफिल की बखैर आफियत अंजाम दही में सूबाई वज़रा ने भरपूर किरदार अदा किया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दिन रात मेहनत करके फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ीर ममलकत शिज़ा फातिमा ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के हर शहरी को मुख्तलिफ सरकारी शोबों की खिदमात उनकी दहलीज पर पहुँचाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ को खुसूसी अहमियत दे रहे हैं।
اسلام آباد میں پاکستان کی جانب سے خلا میں بھجوائے گئے مصنوعی سیارے پاکسیٹ MM-1 کی اپلیکیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ اس مصنوعی سیارے کو خلا میں کامیابی سے بھجوانے سے پاکستان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیشگی آگاہی سمیت مختلف شعبوں میں بہت فائدہ ملے گا۔ Really digitize Pakistan in 3 verticals: گورننس میں، اکانومی میں اور سوسائٹی میں۔ ایک شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے اس کی ایجوکیشن سے لے کے اس کے ہیلتھ، اس کی تمام، چاہے وہ ٹریول ہے، اس کی ID ہے، وہ راستے میں ٹیکسز پے کرے گا، سیلری ڈرا کرے گا، they'll probably buy a land at some point, hopefully a car at some point. So digitizing all of that around their identity will not only make governance easier, will not only digitize economy for us, but will actually make the life of an average citizen much better. IT کے وزیر مملکت نے بتایا کہ حال ہی میں اقوام متحدہ کے حوالے سے بھی اس حوالے سے بات کی گئی ہے اور گورننس سے متعلق وفد پاکستان آیا، جس نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کو جنوبی ایشیا کے 2 ممالک میں شامل کیا جنہوں نے گورننس میں نمایاں پیش رفت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی دنیا کی سر فہرست ملکوں میں آتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کے ہر قصبے اور دیہات تک تیز ترین انٹرنیٹ کی رسائی ممکن بنائے تاکہ شہریوں کو دنیا بھر کے ساتھ تیز ترین رابطے کی سہولت میسر آ سکے۔ انہوں نے پاکسیٹ MM-1 کی کامیاب لانچنگ پر پاکستان کے خلائی تحقیق کے ادارے اسپارکو سمیت سب متعلقہ اداروں کی کوششوں کو بھی سراہا۔ PTI نے انٹرا پارٹی انتخابات کے معاملے میں دستاویزات جمع کرانے کے لیے 3 ہفتوں کی مہلت مانگ لی ہے۔ الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ درخواست گزار نوید انجم نے موقف اختیار کیا کہ میں نے PTI چیئرمین کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جنہیں PTI کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن کے بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور مزید دستاویزات جمع کرانے کے لیے ایک بار پھر مہلت مانگتے ہوئے کہا کہ ان کے وکیل آج پیش نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن میں جمعیت علماء اسلام انٹرا پارٹی کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ الیکشن کمیشن کے سامنے جمعیت علماء اسلام کے جونیئر وکیل پیشور موقف اختیار کیا کہ جمعیت علماء اسلام کے انٹرا پارٹی انتخاب مرحلہ وار ہو رہے ہیں، ہم نے دستاویزات جمع کرائے ہیں جن میں شیڈول دیا ہوا ہے، انٹرا پارٹی انتخاب کے لیے 60 دن کی مہلت دیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد آپ کو مہلت نہیں ملے گی، الیکشن کمیشن مشورہ کر کے تاریخ کا تعین کریں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 800 پوائنٹ سے زائد کے اضافے کے بعد انڈیکس 80,000 کی حد عبور کر گیا۔ مزید بات کرتے ہیں کراچی میں موجود ہمارے نمائندے سہیل جمالی سے۔ جی سہیل جمالی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آج کاروباری ہفتے کا تیسرا روز ہے اور سے ہی سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور صبح کے اوقات میں ہی 550 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور پاکستان سٹاک ایکسچینج نے 80,000 کی نفسیاتی حد عبور کی جو اب بھی وہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو IMF کا وہ پروگرام ہے جو $7 ارب کا پاکستان کو ملنے والا ہے، جس میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے اور 25 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ پاکستان کے لیے قرض منظور ہو جائے گا۔ دوسری اہم وجہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے پالیسی ریٹ میں 2% کمی ہے۔ شرح سود میں 2% کمی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جو مسلسل استحکام دیکھا جا رہا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ حکومت کی معاشی اصلاحات، FBR میں اصلاحات، اس کے علاوہ SIFC کے تحت کانکنی، معدنیات، ٹیلی کام، IT کے سیکٹر میں، زراعت میں اور دوسرے شعبوں میں بیرونی سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے۔ اس حوالے سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، ان کی معاشی ٹیم اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی مسلسل کاوشوں کی وجہ سے بھی اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیزی کا رجحان ہے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ آج جن شعبوں میں زیادہ ترقی ہوئی ہے اس میں انویسٹمنٹ بینک ہیں، کمرشل بینکس ہیں، فرٹیلائزر ہے، تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنیاں ہیں۔ اس کے علاوہ فیوچر کانٹریکٹس میں بہت زیادہ تیزی دیکھی گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے نجکاری کا عمل، معاشی اصلاحات اور IMF سے قرض پروگرام میں پیش رفت سے سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ سہیل جمالی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے لیے وائٹ آئل پائپ لائن پروجیکٹ کا معاہدہ ایک اہم پیش رفت ہے۔
477 किलोमीटर तवील वाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर तामीराती काम शुरू करने के लिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान माचिके थालियां तारोजबा पाइपलाइन के मंसूबे के लिए मुआहदा तय पा गया है। तरक्याती मंसूबा होने के बायस ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल पार्को और इंटर स्टेट गैस सिस्टम का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसकी सरबराही फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। ये पाइपलाइन मोटरवे के मतवाजी माचिके थालियां और थलियां तारोजबा के दरमियान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इस पाइपलाइन को अटक रिफाइनरी, चक पिराना और फकीराबाद के साथ मुंसलिक करने की सहूलत भी मौजूद है। मंसूबे की तामीर से तेल की हमवार सप्लाई यकीनी होगी और लागत में भी कमी आएगी, जिससे कौमी खजाने में अरबों रुपए की बचत होगी। वाइट ऑयल पाइपलाइन का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की मौसर सप्लाई को यकीनी बनाने के साथ साथ मिलावट की रोकथाम और हिफाजत में इजाफा करना है। ये पाइपलाइन स्ट्रेटेजिक रास्ते का अहाता करते हुए सड़क की नकलो हमल पर इन्हिसार कम करने, माहौलियाती असरात को कम करने और तेल की तकसीम की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित होगी। वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे की तकमील में तेजी पेट्रोलियम डिवीजन में तरक्की के लिए हुकूमत और SIFC के अज़्म का सबूत है। नाज़रीन, मुल्क भर के 115 अजला में कामयाब इंसदाद पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो मुहिम आयशा रज़ा फारूक ने कहा है कि पोलियो का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। बीमारी पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अगली 2 पोलियो मुहिम्मात इंतहाई अहम हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी है। मजीद कहा कि फ्रंट लाइन्स पोलियो वर्कर्स, सिक्योरिटी एहलकारों की खिदमत काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए पूरी कौम को अपना किरदार अदा करना होगा। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की ज़ेर सदारत पाकिस्तान के काउंसिल जनरल्स की कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ मौसर रवाबित और पाक अमेरिका तिजारत में इजाफे के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी हमारा सबसे बड़ा असासा और पाक अमेरिका ताल्लुकात के सबसे बड़ी पायदार कड़ी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कुतूलो अर्ज़ में मौजूद अपने लोगों तक पहुँचने और उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश बरूएकार लाई जाए। सफ़ीर पाकिस्तान ने वीज़ा के निज़ाम को मज़ीद आसान बनाने के लिए हुकूमत की जाने से उठाए गए इक़दामात, ख़ास तौर पर कारोबार और सयाहत के लिए वीज़ों की फ़राहमी के इक़दामात को उजागर करते हुए जोर दिया कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फ़राहम की जानी चाहिए। सफ़ीर पाकिस्तान ने इस बात पर भी जोर दिया कि कौंसल जनरल्स और ट्रेड अफसरान रियासती सतह पर तिजारती इम्कानात के मौक़े तलाश करने पर खुसूसी तवज्जो दें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी कांग्रेस के पाकिस्तान कॉकस के चेयर टॉम स्वाजी और शरीक चेयर जैक बर्गमैन से मुलाकात की। पाकिस्तान कॉकस की क़यादत संभालने पर सफ़ीर पाकिस्तान की टॉम स्वाजी और जैक बर्गमैन को मुबारकबाद। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, ख़ुसूसन तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के हवाले से मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम नेहाद इंतखाबात का मकसद दुनिया की आंखों में धूल झोंकना है। मोदी सरकार ने इलेक्शन में जीत की आड़ में चंद नुमाइंदों को रिहा किया है, मगर उनकी आज़ादी को भी महदूद कर रखा है। मीरवाइज उमर फारूक और यासिन मलिक को जेलों और घरों में कैद करके इलेक्शन करवाना महज एक ड्रामा है। हकीकी कश्मीरी लीडरों के बगैर इलेक्शन करवाने का मकसद कश्मीरियों को उनके हकीकी नुमाइंदों से महरूम करके तहरीक आज़ादी को कमज़ोर करना है। बीजेपी को कश्मीर में अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है और वो 6 मरतबा अपने नुमाइंदों की लिस्ट में रद्दबदल कर चुकी है। मकबूजा वादी में जम्मू जो हिंदू अक्सरियती इलाका है, वहाँ के अवाम ने भी मोदी सरकार की इंतहा पसंदी पर मबनी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। जम्मू के इलाके डोडा में होने वाले बीजेपी के हालिया जलसे की नाकामी के बाद मोदी सरकार को अपनी नाकामी साफ नजर आने लगी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबरी इंतखाबात के खिलाफ पासवान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहरे और रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिनमें इंतखाबात नहीं, इस्तिस्वाब चाहिए के नारे दर्ज थे। इस मौके पर खिताब के दौरान मुक़र्ररीन ने कहा कि भारतीय सरकार की साजिशों और बंदूक की नोक पर मुनाकिद होने वाले इंतखाबात एक धोखे के सिवा कुछ नहीं। मकबूजा कश्मीर में किसी भी तरह के इलेक्शन आज़ादी और हक़ खुदरादियत के नेमुल बदल नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर में सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करके ढोंग इलेक्शन मुसल्लत कर रहा है। मुजाहिरीन ने रैली की शक्ल में भारत के खिलाफ मरकजी शाहरा पर मार्च भी किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से फ़लस्तीनी हक़ खुदरादियत की हिमायत और मकबूजा इलाकों की हैसियत में किसी भी किस्म की तब्दीली को तस्लीम न करने का मुतालबा किया है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी खुसूसी इजलास में फ़लस्तीन की जानिब से पेश की गई करारदाद की हिमायत करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत देने और 2 रियासती हल को आगे बढ़ाने के लिए मसला फ़लस्तीन पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम को दरपेश
درपेश तवील मुद्दती नाइंसाफियों को दूर करने के लिए फौरी और फैसला कुन इकदाम का मुतालबा दोहराया। मुनीर अकरम ने आज़ादी के हुसूल के लिए फ़लस्तीनी जद्दोजहद की हिमायत के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इआदा किया। सेहूनी फौज की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और 84 ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीन की वज़ारत तालीम ने कहा है कि गज़ा और मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली हमलों में 11,000 से ज़्यादा तलबा शहीद हो चुके हैं। वस्ती गजा में अल-बुरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फौज की बमबारी से 7 अफराद शहीद और मुतअद्दिद मलबे तले दब गए। गजा में वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली मज़ालिम में फ़लस्तीनी शहादा की मजमूई तादाद 41,252 हो गई है, जबकि 95,500 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इसराइली तोपखाने और फौजियों के गिरोह को निशाना बनाया है। जर्मन ज़राए ब्लाग ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो उन्हें गजा में दाखिल होने की इजाज़त दे। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन गजा में जंगबंदी की कोशिशों के लिए मिस्र के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। हिजबुल्लाह ने पेजर्स धमाकों को इसराइली जाहिरियत करार देते हुए कहा है कि इसराइल को इस हरकत की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हिजबुल्लाह के सैकड़ों अरकान के ज़ेर इस्तेमाल पेजर्स मंगल के रोज़ लेबनान और शाम में तकरीबन बैक वक्त फट गए थे, जिसमें कम अज़ कम 9 अफराद जाँ बहक और 2700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। ज़ख्मी होने वालों में लेबनान में ईरान के सफ़ीर भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने इन धमाकों के लिए जदीद तर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। पेजर वायरलेस पर काम करने वाला मोबाइल फ़ोन तर्ज का एक छोटा सा आला है जिसे तहरीरी या सौती पैगाम भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। म्यांमार में तूफान यागी से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 220 हो गई है, जबकि 80 अफराद अब भी लापता हैं। इस तूफान से खित्ते के ममालिक वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार में तबाही हुई है और इन ममालिक में 500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। तूफान से म्यांमार में शदीद सैलाब आया और मट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात हुए हैं। तूफान से लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 5 लाख से ज़्यादा अफराद को फौरी तौर पर खुराक, साफ पानी, खैमों और कपड़ों की ज़रूरत है। शुमाली कोरिया ने एक हफ्ते के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरा तजुर्बा किया है। शुमाली कोरिया की जानिब से दागे गए मिसाइल 400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। जनूबी कोरिया ने मिसाइल तजर्बे पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि प्योंगयांग के जारहाना इक़दाम से जजीरा नुमा कोरिया का अमन शदीद खतरा से दोचार है। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा है कि वो इस सिलसिले में जापान और अमेरिका के साथ करीबी राबते में हैं। मोदी के भारत में मुसलमानों, सिखों और मसीहियों समेत अक़लियतें मुसलसल हिंदुओं की इंतहा पसंदी का शिकार हैं। रियासत मध्य प्रदेश में बीजेपी के गुंडों ने ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर हमला किया और मुसलमानों पर लाठियों से वहशियाना तशद्दुद और पथराव किया। इलाका मकीनों ने इस वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। 5 रोज़ कबल भी ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के दौरान झंडे लगाने पर जुनूनी हिंदुओं ने मुस्लिम आबादी पर हमला करके एक मस्जिद को शहीद कर दिया था। हिंदुत्वा, बीजेपी और बजरंग दल के गुंडों ने मुस्लिम आबादी में मोटरसाइकिलों और अमलाक को भी आग लगा दी थी। लाठियों और आहनी रॉडों से लैस इंतहा पसंद हिंदुओं के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। भारत में अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमान इंतहाई गैर महफूज हैं और उन्हें अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। इंसानी हुकूक की तंजीमों को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने कत्ल की साजिश करने पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा दायर कर दिया है। सिख रहनुमा ने यह मुकदमा अमेरिकी फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारतीय हुकूमत और रॉ के हुकाम ने अमेरिका की सरजमीन पर ही अमेरिकी शहरी को कत्ल करने की गैर मामूली साजिश की। दरख्वास्त में भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ के अजीत दोवल, निखिल गुप्ता और समंत गोयल और विक्रम यादव को नामजद किया गया है। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्वस निखिल गुप्ता पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वाज़ेह किया कि भारतीय धमकियां और साजिशें खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम के इनेकाद को नहीं रोक सकती। अगर आज़ादी की कीमत मौत है तो मैं इसका सामने करने को भी तैयार हूं। मणिपुर की मजलूम खवातीन गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसे से अपने बिछड़ों के इंसाफ की मुंतज़िर हैं। 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद भी मणिपुर में हज़ारों माएँ, बहनें, बेवाएं, बेटियां अपने ऊपर किए गए जुल्म का हिसाब मांग रही हैं। खवातीन मुसलसल तशद्दुद और ज़्यादती का शिकार हो रही हैं। कभी सरेआम परेड कराकर उनकी इज्जत नफ्स मजरू की गई तो कभी उनके शौहर और बच्चों को बेदर्दी से उनके सामने कत्ल कर दिया गया।
منی پور میں نسلی فسادات اور تشدد سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی خواتین ہیں۔ گزشتہ سال مئی میں نسلی تشدد کی بنا پر کھیلی جانے والی خون کی ہولی آج بھی جاری ہے۔ غیر محفوظ اور بے بس اقلیتیں اب اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھانا شروع ہو گئی ہیں۔ مودی کا کنٹرول اب منی پور میں ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن مودی اب بھی عالمی سطح پر جھوٹی اور کھوکھلی بھارتی جمہوریت کا دفاع کر رہا ہے۔ ناظرین، 18 ستمبر 1965 جنگ کے 18ویں روز تک بھارت کو جارحیت کا بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا۔ دشمن کے 453 ٹینک اور 106 جنگی طیارے تباہ، جبکہ 18 ٹینک پاکستان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ سیالکوٹ اور جموں کے محاذ پر پاکستانی فوج نے بھارتی افواج پر اپنا دباؤ جاری رکھتے ہوئے دشمن کے مزید علاقوں پر قبضہ کیا اور بھارت کو بھاری مالی نقصان سے دوچار کیا۔ پاک فوج کے ہاتھوں واہگہ بارڈر اور اٹاری سیکٹر میں بھارت کے 7 ٹینک تباہ، جبکہ 10 بھارتی فوجی جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ پاکستان نے کھیم کرن میں دشمن کے 4 حملوں کو ناکام بنا دیا۔ پاک فوج نے راجوڑی سیکٹر میں بھارتی بٹالین پر حملہ آور ہوتے ہوئے 3 بھارتی سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ پاک فضائیہ نے کمال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے اڈے امبالہ کو نشانہ بنایا اور امبالہ میں 4 کیمرہ بمبار طیاروں اور تنصیبات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی پاکستانی عوام اپنے غازیوں اور عظیم شہداء کے غیر متزلزل عزم اور حوصلوں کو یاد کرتے ہیں۔ حافظ ارشاد نے اوکاڑا سے راولپنڈی تک پیدل مارچ کر کے پاک فوج اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حافظ ارشاد کے مطابق انہوں نے 6 ستمبر کو اوکاڑا سے مارچ شروع کیا، جس کا مقصد دفاع وطن میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ انہوں نے نوجوان نسل کو پیغام دیا کہ وہ 5th جنریشن وار کا حصہ نہ بنے۔ ہماری آزادیاں صرف اور صرف پاک فوج کی لازوال قربانیوں کی مرہون منت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مارچ کے دوران لوگوں کا پیار قابل تعریف تھا۔ حافظ ارشاد نے کہا کہ راولپنڈی پہنچنے پر ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ پیدل مارچ راولپنڈی کچہری چوک سے ہوتا ہوا GHQ پہنچا۔ کہ ہمیں آج کل سوشل میڈیا پر جو 5th جنریشن وار ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں اور اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نے یہ تقریباً 470 کلومیٹر کا پیدل مارچ الحمدللہ جو مکمل کر لیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں اجلاس ہوا، جس میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی مرمت کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سیلاب کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے، سڑکوں کی مرمت کا کام جلد از جلد شروع کیا جائے۔ انہوں نے تمام متعلقہ حکام کو لاگت سے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے ماضی قریب میں بنائی گئی سڑکیں جو خراب ہو گئی ہیں کی انکوائری کرانے کی بھی ہدایت کی۔ ایم پاکس کے مشتبہ کیسز کے پیش نظر ملک کے تمام داخلی راستوں اور ایئرپورٹس پر مسافروں کی سخت نگرانی اور حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی سے سہیل جمالی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ملک کے تمام ایئرپورٹس پر ایم پاکس کی روک تھام کے اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بارڈر ہیلتھ سیکورٹی کے عملے کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر اب 1 کے بجائے 2 ڈاکٹر اور 10 طبی معاونین ہمہ وقت ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ ہر بین الاقوامی پرواز کے بعد امیگریشن اور لاؤنج ایریا میں 2 سے 3 بار جراثیم کش اسپرے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق جناح انٹرنیشنل میں اگست کے دوران 46,722 مسافروں کی اسکریننگ ہوئی۔ مشتبہ مسافر کی چیکنگ اور آئسولیشن کے لیے کیبنوں کی تعداد میں اضافہ، جبکہ بین الاقوامی آمد واک وے ایریا میں بھی آگاہی اسٹینڈز رکھ دیے گئے ہیں۔ جناح انٹرنیشنل ریسورس سینٹر میں مزید آگاہی سیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس جیسے بھی اتنے سسپیکٹڈ کیسز ہیں وہ آتے ہیں تو پھر ہم ان کو آئسولیٹ کر کے ان کے ٹیسٹ بھجواتے ہیں۔ جب نیگیٹو ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر ہم ڈی آئسولیٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ابھی جو 3 کیسز آئے تھے وہ سارے نیگیٹو ہیں تو ہم نے ان کو ڈی آئسولیٹ کر دیا۔ ہمارے پاس کوئی بھی کیس ڈیٹیکٹ نہیں ہوا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق متاثرہ شخص میں ایم پاکس کی علامات 1 سے 2 ہفتوں کے درمیان ظاہر ہوتی ہیں۔ ابتدا میں سر درد، بخار، سانس پھولنے کی شکایت اور بعد میں چیچک کی طرح جسم میں دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ سرکاری سطح پر ایم پاکس کو روکنے کے تسلی بخش اقدامات کیے گئے ہیں۔ مرض کی علامات کی صورت میں سماجی رابطوں سے گریز ہی اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کیپٹن عبدالخالق اچکزئی، صوبائی وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کے ہمراہ ضلع سبی کی تحصیل لہڑی میں مرحوم سردار سرفراز خان ڈمکی کی وفات پر ان کے فرزند میر کوہیار خان ڈمکی اور لواحقین سے تعزیت اور فاتح خوانی کی اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی اور ان کی ملک پاکستان اور جمہوریت کے لیے خدمات کو سراہا۔
बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी के जंगल करीम काची और बेश में गुज़िश्ता शाम लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शिरानी माजबी सना के मुताबिक लेविस फोर्स, महकमा जंगलात, PDMA के अमले और मकामी कम्यूनिटी की टीमें सुबह 5 बजे के करीब मौके पर पहुँच गईं और अंतक मुश्तरका काविशों से जंगल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। इस जंगल में नायाब चिलगोज़ा और जैतून के दरख्त भी हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत खानेवाल में महकमा तालीम की कारकर्दगी के हवाले से इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर तालीम ने जमात नहम के नताइज पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए CEO तालीम को नाक़िस कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा को बदलने की हिदायत कर दी। राना सिकंदर हयात को स्कूलों में शजरकारी, नॉन फॉर्मल और स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स के बारे में भी आगाह किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सिकंदर हयात ने कहा कि खानेवाल में यूनिवर्सिटी कैंपस के क़याम के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब तालीम के शोबे पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए तालीम के साथ स्किल्स प्रोग्राम्स भी शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब भर की तरह जिला पाकपतन में भी 22,000 से ज़ायद किसानों में किसान कार्ड की तकसीम का अमल जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास अली आरिफी। के दूसरे अजला की तरह जिला पाकपतन में भी 22,666 किसानों में किसान कार्ड की तकसीम का अमल जारी है। पहले मरहले में अब तक 1,000 से ज़ायद किसान कार्ड वसूल कर चुके हैं। किसानों ने हुकूमत के इस इक़दाम को बेहद सराहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें किसान कार्ड मुहैया किए और किसान कार्ड की मदद से हम तमाम किसान भाई खाद ले सकेंगे, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में हिस्सा ले सकेंगे और इससे किसान खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। सर किसान कार्ड जो है ना हुकूमत का अच्छा इकदाम है। मिला जी सानू बहुत फ़ायदा है। अच्छी दवाइयाँ खादां जी चीज़ भी है मुयसर होगी सानू बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर आने वाले किसानों की हम रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन करके उनको कार्ड तकसीम कर रहे हैं। इस तरह के 136 ज़राई ऑफिस पंजाब भर में फार्मर्स के कलेक्शन पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब और एग्रीकल्चर के टीम इकट्ठे बैठे हैं और फार्मर्स को मैसेज मिलके उनको किसान कार्ड दिया जा रहा है। किसान कार्ड से 1 एकड़ से 12 एकड़ तक के ज़मींदार आसान कर्जे और ज़रूरी अद्वियात पर सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। किसान कार्ड हुकूमत पंजाब का एक अहसन इक़दाम है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासातसुगो आसाकावा ने पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे में तारीखी मकामात का दौरा किया और इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं फाहद अजीज। सदर एशियाई तरक्याती बैंक ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट शक्करपड़ियां का दौरा किया, यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और कौमी हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। सदर एशियाई तरक्याती बैंक ने यादगार शहदा पर पौधा भी लगाया। इस मौके पर सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर काजिम नियाज भी मौजूद मेहमान के हमरा मौजूद थे। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान आला सतह राब्तों से मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद फरोग पाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर ने फैसल मस्जिद का भी दौरा किया और मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों और तर्ज तामीर में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फैसल मस्जिद दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान का जरिया है। फाहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसावी तनख्वाह का दिन इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि मुलाजमत पेशा मर्द और ख़वातीन की तनख्वाहों में फ़र्क को कम से कम करने के लिए इक़दाम को तेज़ किया जाएगा। मज़ीद तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम अपनी रिपोर्ट में। किसी भी मुआशरत की तरक्की में कारोबारी सरगर्मियों की अहमियत अपनी जगह, ताहम मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत इख्तियार करने वाले भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद की रोजमर्रा जिंदगी का दारोमदार तनख्वाह पर होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक खिदमात के मुआवजे की अदायगी में सिनफी बुनियादों पर इम्तियाज बरतना इंसानी हकूक के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2020 में पहली मरतबा 18 सितम्बर को मसावी तनख्वाह का आलमी दिन मनाया, जिसका मकसद मर्द और ख़वातीन के साथ साथ मसावी काम करने वाले हर फर्द को गैर मसावी तनख्वाह के मामले पर आगाही पैदा करना और मसावी तनख्वाह के हसूल के लिए कोशिशों को तेज करना है। यूनाइटेड नेशन का ये प्लान है कि 2030 तक इस गैप को बहुत कम किया जा सके और इस वक्त पाकिस्तान में ये जो तनासब है वो 34% है जो औरतों को या ख़वातीन को पे मर्दों की निस्बत कम मिलती है। डेली वेजेस हैं
उनको मजदूरी कम मिलती है ख़वातीन होने की वजह से। तनख्वाहों में फ़र्क की वजूहात में गुर्बत, ताकत, अदम मसावात, मौक़ों की फराहमी और वसाइल तक रसाई शामिल है। मसावी तनख्वाह का आलमी दिन ख़वातीन के साथ साथ खुसूसी अफराद और माशरे के नज़रअंदाज किए जाने वाले तबकों की खिदमात के लिए यकसा मुआवजे का मुतालबा करता है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टीवी न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान हिलाल अहमर सोसाइटी ने जर्मन रेड क्रॉस के ताउन से मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफात से बचाव और सफाई मुहिम के हवाले से गिलगित के इलाके हुपर नगर में कम्युनिटी आगाही सेशन का इनेकाद किया। रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ाकत अली। अंजुमन हिलाल अहमर पाकिस्तान ने जर्मन रेड क्रॉस के ताउन से होपर नगर में मुकामी कम्युनिटी के लिए आगाही सेशन का एहतमाम किया, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीली, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और सफाई मुहिम था। इस मौके पर मुकर्रिन का कहना था कि मौसमियाती असरात की वजह से गर्मी और सर्दी के दौरानिये में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। हमें इस एरिया में क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और ये जो हमारे वाटर टावर है जीबी में, स्पेशली ये सबसे बड़ा हमारा वाटर टावर है और ये जो होपर ग्लेशियर है, इसको बचाने के लिए तमाम इदारों को मिल के यहाँ पे इसको बचाने के लिए काम करना चाहिए। बेसिक मकसद ये था कि जो हमारे माहौलियात में, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उनको कम से कम करें। अंजुमन हिलाल अहमर के ज़ेर एहतमाम होपर नगर में सफाई मुहिम भी मुनक्किद हुई, जिसमें मनु कचरा जमा करके महफूज मकाम पर माहौलियाती उसूलों के एन मुताबिक तलफ कर दिया गया। मुकामी अफराद ने शिकवा किया कि यहाँ पर आने वाले सयाह कचरा फैलाकर इस इलाके के हुस्न को खराब कर रहे हैं। हिलाल अहमर टीम के साथ होपर कम्युनिटी ने इस तरह 2.5 मन मतलब होपर जो टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ से इकट्ठे हो गई है। जो डोमेस्टिक पाकिस्तानी टूरिस्ट है ये इनका कमाल है। खुदारा अपने साथ जो आप आते हैं एंजॉय करो इस खूबसूरत हमारी माहौल को, आप गंदा ना करें। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती हुस्न से मालामाल ऐसे इलाकों में सफाई मुहिम से अवाम और सयाहों में शऊर उजागर करने में मदद मिलेगी। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित। जिला स्कर्दू के सब डिवीजन रोंदो का अहम सियाहती मकाम थोड़ से अपनी सरसब्ज़ शादाब और दिलफरेब वादियों के लिए मशहूर है। दूर दराज इलाकों से बड़ी तादाद में सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। तफसील स्कर्दू से हमारे नुमाइंदे कासिम नसीम से। कुदरत ने बल्तिस्तान को दिलफरेब मनाजिर से भरपूर कई एक ऐसी वादियों से नवाजा है जो सयाहों को दावत नज़ारा दे रही हैं। नजरों को मशहूर करने वाली खूबसूरत वादी में स्कर्दू जिले के सब डिवीजन रंदू की वादी थुरसे बिलमिक खास तौर पर काबिल जिक्र है। बुलंद चोटियों, सरसब्ज ढलानों, साफ शिफा पानी के चश्मों के दरमियान वाक़े इस वादी की खूबसूरती को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। यहाँ हद निगाह सब्ज़जार के दरमियान वाक़े बल खाती नदी जो थुरसे जिगजैग मेडो से मरूफ है, खूबसूरती में अपनी मिसाल आब है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इस तिलस्माती वादी के मनाजिर को कैमरे की आंख से महफूज करने जरूर इस मकाम पर आते हैं। हम यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, गो कि ये जगह जो है थुरसे बिलम एक मशहूर जो है पिकनिक स्पॉट है। लोग जो है हर साल में यहाँ का विजिट करते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे एरियाज। जैसा सुना था उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत पाया। यहाँ पे आपका नेचुरल, यहाँ पे जो जिगजैग वाला नहर बह रहा है, ग्रीनरी है, सामने कॉन्स नजर आ रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने देखा कि यहाँ पे नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा खाने में ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मकामात से मुतलिक मालूमात को आम किया जाए तो खित्ते में आने वाले सयाहों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, बिलमिक, रोंदो। मुफ्ती अवैस अजीज़ आइंदा 5 साल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामाबाद के अमीर मुंतखब हो गए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सैकड़ों कारकुनों ने पोलिंग में हिस्सा लिया। खानकाह करिया के नायब सरबरा और हजारवी के सियासी जानशीन मुफ्ती अवैस अजीज़ भारी अक्सरियत से आइंदा 5 साल के लिए अमीर मुंतखब हो गए। JUI इस्लामाबाद के नामुंतखब अमीर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो तमाम कारकुनों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और अब खबरें शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बक्कर की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी में भी 41, तुरबत और दालबंदीन में 40, जबकि सिब्बी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल, और अब आप खेल की दुनिया का अहवाल जान सकेंगे।